Good morning, children. We have done this, the magnetic lines of force around this bar magnet. These are termed as magnetic lines of force or magnetic field lines also. In some books, you will come across the word magnetic field lines also. So this was the general pattern of magnetic lines of force around bar magnet that we have studied. These were the properties of this magnetic lines of force. They start from north and end towards south. They are closed and continuous curve. There is no discontinuity in between these lines. More crowding of lines means more strong is the magnetic field. So crowding is proportional to magnetic field, and tangent to this line gives the direction of magnetic field. Like at this point, if I draw a tangent, then this tangent will give the direction of magnetic field. Next point is fifth point, which is very important. No two magnetic lines of force can intersect. Like here also you have seen, and in that practical also you have seen that there is no intersecting between the lines. Each and every single line is independent. So if they intersect, I'm repeating this concept again, because if you this is quite difficult line. This is actually quite difficult point for magnetic lines of force. So I'm repeating it again. So this is the point of intersection between this and this line. At this point particularly, if you place a magnetic needle, obviously it will going to deflect in single direction. ऐसा नहीं है कि lines अलग हो गई तो magnetic needle भी दो अलग अलग directions में point करेगा, या फिर इस line का tangent अलग magnetic field दिखाएगा, या इस line का magnetic जो field है वो अलग लाइन का जो टेंजेंट है वो अलग डायरेक्शन दिखाएगा. तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड होना इज नॉट पॉसिबल. So we cannot assume that two magnetic lines can intersect. Students, this magnetic lines of force is actually hypothetical concept. Imaginary lines है ये, real lines नहीं होती. They are just used to visualize the effect of magnetic field. Just to विजुअलाइज कि कैसा होता है पैटर्न, कहाँ स्ट्रॉन्ग क्राउडिंग है, कहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो उसी के लिए ही ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. सो यही था मैग्नेटिक लाइंस का कॉन्सेप्ट. प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली हैं. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड विच रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, लाइक दैट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, and it is represented by straight equidistant parallel lines. This is the feature of this uniform magnetic field, and the field and the magnetic strength pattern that is shown by this bar magnet is obviously non-uniform. Why this is non-uniform? Because lines are not equidistant. They are not equally equidistant, and moreover they are not parallel to each other. So this is an example of non-uniform magnetic field. Next topic we are going to discuss about is magnetic lines of force around a straight conductor. So this is the topic on page number 225, magnetic field due to a current carrying conductor. Current carrying conductor actually behaves as a magnet. So that was shown, that was told by Oersted. So we are going to read that experiment, how a current carrying conductor can be imagined as a magnet. So students, to prove that ki how a current carrying conductor, like in this activity figure 13.5, we have two circuit diagrams given here, in which we have a conductor. ये conductor है आपका, यहाँ पर ये conductor है. इन conductor के through हमने current pass किया through battery source, and we have to analyze with the help of two activities how we can say that these two conductors are behaving as a magnet when current is provided, when current is supplied through these conductors for some time. Let us see this activity 13.4. One thing that we can do to prove that something is magnet that we can use is magnetic needle. First thing, we can use needle, and second thing, we can spread iron filings. So with the help of these two things, like what we have done in bar magnet case also, likewise we are going to demonstrate the magnetic effect of current in this conductor using magnetic needle and iron. So we will be doing two activities, one with needle and other with iron filings. So in this activity we have taken this conductor and passed the current through this wire. Over this conductor we have kept a magnetic needle. One time you can place a needle at the top of this conductor, and other time you can place the magnetic needle below the conductor. Like if this is the conductor, एक बारी मैं इसके ऊपर यहाँ रख दूँ
और एक बारी मैं निडल नीचे रख दूँ तो डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा। तो वही सब कुछ हमने स्टडी करना है कि हाउ द निडल इज़ बिहेविंग, हाउ द निडल इज़ डिफ्लेक्टिंग when we keep on changing the direction of current through this conductor. And second thing, when we are placing the needle above the conductor, and next time we are placing below the conductor. So the direction of needle depends on, जो डिफ्लेक्शन होगी निडल में वो डिपेंड करेगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है इसके ऊपर, और आपने निडल को कहाँ प्लेस किया है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सो लेट अस एनालाइज दिस कि हमने करंट पास करना शुरू किया, निडल डिफ्लेक्ट होगी, बट द मेन थिंग इज कि वेयर निडल इज डिफ्लेक्टिंग, हाउ द निडल इज डिफ्लेक्टिंग, वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ निडल्स डिफ्लेक्शन. सो फॉर दैट वी हैव अ स्पेशल रूल कॉल्ड एज स्नो रूल. सो लेट अस रीड what is that. This is snow rule. Snow and opposite to that is nose. We will be discussing these two now. South to north, if current is flowing, like this is the conductor, if current is flowing in upward direction like south to north, and you have kept the magnetic needle above this conductor, like this is the pen, and I am passing the current from this bottom टू द टॉप. यहाँ तक मैं करंट को पास कर रही हूँ और मैग्नेटिक निडल मैंने यहाँ ऊपर रख दी है इसके. तो इस निडल में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में दी जाएगी, दैट इज गिवन बाय स्नो रूल, विच सेज दैट कि इफ करंट इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, then the deflection of magnetic needle will be towards west. So this is snow rule. And opposite to that, ki if current is passing from north to south, like if the current is passing from north top to bottom, and if I place needle above it, then deflection will be towards east. This happens when needle is kept above. But if you keep the direction of current same, like here south to north and north to south, but if you are keeping the needle below this conductor, then directions will be reversed. This is the beauty of magnetism कि जो भी current की direction है उसके according आपका magnetism govern होता है, decide होता है. तो करंट और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड हैं एंड दे कीप ऑन चेंजिंग देयर डायरेक्शंस. सो दिस इज नो रूल. इफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, देन निडल विल बी डिफ्लेक्टेड इन वेस्ट डायरेक्शन. वेस्ट डायरेक्शन में निडल की डिफ्लेक्शन मिलेगी. एंड इफ द करंट इज पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, द निडल विल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ईस्ट. सो दिस इज हाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड साउथ टू नॉर्थ स्नो. दिस इज फॉर W. North to south, nose, E for deflection in east direction. If you remember this, then opposite to that means जो below conductor place करनी है हमने needle, वो अपने आप आपको clear हो जाएगी. Similarly, one more rule we have parallel to this, that is Ampere swimming rule. Ampere's swimming rule. वो parallel ऐसा ही rule है. उसमें हम क्या imagine करते हैं कि consider a person swimming in such a way that it follows the direction of current. Like वो person जो है वो ये सारा water body है और यहाँ swim कर रहा है from इस direction से इस direction तक swim कर रहा है. तो यहाँ वो गया बंदा, यहाँ पे swim कर रहा है. तो current के flow होने की direction क्या हो गई, south to north. तो उसकी जो deflection होगी, needle की deflection कहाँ होगी, where the person's left hand is there. मतलब यही सेम रूल है. साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, डिफ्लेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स वेस्ट, और वेस्ट किधर है उसका, जहाँ पर लेफ्ट हैंड है. तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि इमेजिन अ पर्सन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इफ इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल विल बी सीन वेयर द पर्सन's लेफ्ट हैंड इज देयर. सो दिस इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल. सो आफ्टर एनालाइजिंग दिस, we have seen that needle has deflected. This activity you can perform at your home कि एक वायर में से आप करंट पास करो और मैग्नेटिक निडल उसके अराउंड अगर आप प्लेस करते हो तो आपको निडल में डिफ्लेक्शन दिखेगा. पर प्रोवाइडेड कि करंट थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आपको उस वायर में से पास करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज दूसरी एक्टिविटी अब हम करते हैं कि ये वायर अगर मैग्नेट बन चुकी है तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट आयरन फाइलिंग्स लाइक इन बार मैग्नेट केस. सो वी आर डिस्प्लेइंग दैट, वी आर डूइंग दैट नाउ. So next is magnetic field due to a current. Same activity like here if you read the topic, magnetic field due to a current carrying conductor, same वही है,
उसमें हम यहाँ पर अभी हम स्ट्रेट कंडक्टर का ये सारा रीड कर रहे हैं, अब हम स्ट्रेट कंडक्टर का दूसरी तरह से रीड कर रहे हैं, करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ से अब हम रीड करेंगे इसको। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने क्या किया, ये हमने ली एक एक्टिविटी, दिस इज़ योर एक्टिविटी 13.5 और ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले। फिगर 13.6 लाइक हेयर व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड and drill a hole into that, through which we have passed this wire, straight wire. We kept on passing current for some time and this wire successfully has become magnet. तो वो वायर मैग्नेट बन चुकी है। एंड इफ़ यू स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स अराउंड दिस magnetized piece of wire, then we will see that iron filings are arranging themselves in a definite pattern, like in case of bar magnet वो पैटर्न ऐसा था, कुछ रिंग्स ऐसी, कुछ ऐसे लूप्स बने हुए थे, सर्कुलर लूप्स बने हुए थे, कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप्स बने हुए थे। तो यहाँ पर भी क्या है कि कुछ क्लोज्ड और कंटिन्यूस कंसेंट्रिक रिंग्स आपको दिखेंगी जिस पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज करेंगी। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर कि आयरन फाइलिंग के मूव करने का भी एक पैटर्न है कि आयरन फाइलिंग्स क्लॉकवाइज अपने आप को अलाइन करती हैं करंट पास करने पर, या एंटी क्लॉकवाइज अलाइन करती हैं अपने आप पर। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अलाइनिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स मूव कैसे करी जब आपने आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल किया ऑन दिस कार्डबोर्ड, हाउ दे आर मूविंग, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए भी हम एक रूल यूज़ करते हैं विच इज़ राइट हैंड थंब रूल। दिस राइट हैंड थंब rule we are going to read very soon. Till the time we have to read this activity because these activities are very important. Sometimes they come in your exam also, like with the help of an activity, how iron filings arrange themselves around a magnetized piece of straight conductor. So explain it with the help of activity. ये सब आता है और ये आपको रियल पैटर्न दिखाया हुआ है concentric rings का around this straight conductor passed through the cardboard piece. A close-up pattern obtained. So to analyze, to study how these magnetic lines, actually magnetic lines means the pattern of iron filings, कि ये कैसे बना, तो उसके लिए अभी हम रीड करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इमेजिन that you are holding a conductor, current carrying conductor in your right hand in such a way that thumb points towards the direction of electric current, then your fingers will wrap around the conductor in such a way that direction of magnetic field lines are as shown. Like if this is a conductor and I am holding this conductor in such a way, ऐसे मैंने होल्ड किया है इस कंडक्टर को, तो जो मेरा थंब है वो पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लाइक अगर मेरा थंब अपवर्ड है तो दिस इज शोइंग कि करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस करंट में बॉटम से टॉप पर करंट जा रहा है, ऐसे ऊपर फ्लो कर रहा है। और जो मेरी फिंगर्स रैप कर रही हैं अराउंड दिस कंडक्टर, वो शो करेगा मैग्नेटिक लाइंस की जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो इस कंडक्टर के अराउंड ऐसे टर्न करके ऐसे रैप करेंगी। सो ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। और अगर कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये आपका कंडक्टर है और इसमें करंट मैं ऊपर से नीचे की तरफ पास कर रही हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास कर रही हूँ, ऊपर से नीचे, तो उस केस में क्या है, हमें हैंड को नीचे करना पड़ेगा, थंब नीचे, और जो आपकी लाइंस हैं वो ऐसे कर्ल कर रही हैं, ये डायरेक्शन आ रही है कर्लिंग की। तो ये जो डायरेक्शन है इससे आपको रिप्रेजेंट होगा कि आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं। अभी मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये लाइक अगर ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने ये कंडक्टर ऐसे रखा, ऊपर से नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है करंट, तो मैं इसको 3 डायमेंशनली अगर आपको दिखाऊं तो करंट ऐसे जा रहा है, ये थंब ऊपर जा रहा है। अब मैं कर्लिंग करूं तो कर्लिंग ऐसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप देखो तो मेरी फिंगर ऐसे टर्न कर रही हैं। तो ये जो आपका आयरन फाइलिंग्स है जो सारा, वो इस आयरन कंडक्टर के अराउंड घूमेगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सारी लाइंस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसेंट्रिक रिंग्स बनाती जाएंगी। ऑन द अदर हैंड करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड आ रहा है ऐसे, तो अगर मैं आपको अपना हैंड दिखाऊं तो ये ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रही हैं लाइंस,
तो ये लाइंस आपकी ऐसे, ये आप खुद करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे मूव कर रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज़ राइट हैंड थंब रूल विच सेज दैट कि अगर आप एक कंडक्टर को होल्ड करते हो अपने हैंड में इन सच अ वे दैट करंट पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस current, then the curling of your fingers give you the direction of magnetic lines of force. So this is right hand thumb rule. So if you like to confirm कि आप लोग सही रूल अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट मतलब वो आपके लिए, वो कोई रूल नहीं है, वो एक ट्रिक है याद करने की। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, एन, एस टू एन, एन एन टी, साउंड सेम आ रही है एन से एन टी। तो अगर आप साउथ टू नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब अगर करंट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा होगा। और ऑपोजिट फिर आपको याद रह जाएगा, नॉर्थ टू साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब उसी स्ट्रेट वायर को आपने सर्कुलर लूप में टर्न कर दिया है, लूप बना दिया आपने, उसका सर्कुलर लूप बना दिया है। अब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। पर उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जो इस टॉपिक में भी काम आएगी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड किन फैक्टर्स के ऊपर करता है, कि मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ रही है या कितनी स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आ रही है, या लाइंस कितनी जल्दी अपने आप को कर्ल कर रही हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट, जितना आप करंट पास कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना आप कंडक्टर से दूर होते जाओगे ऑब्वियसली उतना मैग्नेटिज्म क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऑन दीज टू फैक्टर्स the strength of magnetism depends. Sometimes in one liner question this kind of questions come into your paper, and sometimes in 1 mark questions too.